sound system is sounding different, isn't it? आज आवाज अलग आ रहा है. Hallelujah. हालेलुया. And this is just the beginning. The best is yet to come. ये सिर्फ शुरुआत है. Hallelujah. इससे भी सर्वोत्तम अभी आने वाला है. Amen. Hallelujah. हालेलुया. All right. This morning, when I was taking a shower, आज सुबह जब मैं नहा रहा था, the Lord spoke to me something which He had spoken to me already many years ago. प्रभु ने मुझसे बात की, वो बात जो प्रभु ने पहले भी कुछ सालों पहले कही थी. And listen to me very carefully, please. मुझे इसे ध्यान से सुनिए. And the Lord told me that in your ignorance, He's talking to me as an individual, in your ignorance, तो प्रभु मुझसे बात कर रहे थे व्यक्तिगत तरीके से. वो कह रहे थे कि तेरी अज्ञानता में for many years you tried to please me when I was already pleased with you. तूने बहुत बार कोशिश की मुझे प्रसन्न करने की, जबकि मैं पहले से ही प्रसन्न हूँ तुझसे. Hallelujah. हालेलुया. How many want to please God? आप में से कितने लोग ऐसे जो प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं? अरे बाप रे, there are still many. काफी लोग हैं. How many are well pleasing to God? कितने लोग प्रभु के लिए संतुष्ट है पहले से? प्रभु. Hallelujah. हालेलुया. We do a lot of gymnastics, to please God. हम बहुत कसरत करते हैं प्रभु को खुश करने के लिए. But thank God, we have been perfected with one sacrifice of Jesus Christ. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम एक ही बार उस पवित्र बलिदान के द्वारा परिपूर्ण किए गए हैं. Hebrews chapter 7 verse 24 says, but this man, talking about Christ Jesus. इब्रानियों के पुस्तक 7वां अध्याय का 14वां वचन, ये 24th. 24वां वचन. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है. Seeing he ever liveth to make intercession for them. क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है. He said he is able to save them to the uttermost. यह वचन कहता है कि वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है. One man of God said to the uttermost and also to the guttermost. एक प्रभु के सेवक ने कहा था कि ऊंचे से ऊंचे तक और नीचे से नीचे तक जितने भी आप जहाँ कहीं हो प्रभु आपको बचा सकता है. Verse, Hebrews is my pet book. जो इब्रानियों की पुस्तक है वो मेरी सबसे पसंदीदा पुस्तक है. Wow, by the grace of God, the Lord will allow me and help me to by heart all the 13 chapters. और प्रभु की अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा वो मुझे ये पूरा याद करने में मदद कर रहा है. 13 अध्याय. 2 are already done. 11 is remaining. 2 मैंने पहले से कर दिए हैं, 11 बचे हैं. Okay, verse 26 says, for such an high priest became ours, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. 26वां वचन कहता है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो. The high priest in the Old Testament was a sinner. That's the reason he had to offer sacrifice for his own sins and for the sins of the people. पुराना नियम का जो महायाजक था वो पापी हुआ करता था, तो उससे पहले खुद के पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था और फिर लोगों के पापों के लिए. So before the high priest would get into the most holy place, he had to keep himself undefiled. कि महायाजक जो है वो पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले उसे खुद को पवित्र रखना पड़ता था. Because the high priest, he is the one who used to represent the entire land of Israel. क्योंकि जो महायाजक था वो पूरे इज़राइल के देश को प्रदर्शित करता था वहाँ पे. So God Almighty, he did not see the land of Israel, he saw the land of Israel in that high priest. इसलिए प्रभु ने इज़राइल के देश को नहीं देखा कभी, लेकिन उस महायाजक में ही इज़राइल के पूरे देश को देखा. So when the high priest get into the most holy place, he does something which is wrong over there, the whole land will be judged.
अगर महायाजक पवित्र स्थान में जाके वहां पे कोई गलती करता है तो उस गलती की सजा पूरे इजराइल के देश को मिलेगी. So that's the reason before he could get into the most holy place, he had to keep himself holy, clean and pure. इसीलिए उस पवित्र स्थान में जाने से पहले उसे खुद को पवित्र रखना पड़ता था, शुद्ध रखना पड़ता था. And even when night time he used to go off to sleep, so that he doesn't defile himself even in the sleep. The people used to be around his bed reading the Torahs. They used to be reading the scriptures. वो इतना ख्याल रखते थे कि अगर वो रात को भी खुद को दूषित न करे, इसलिए जब वो रात को बिस्तर पे सोता था तो उसके बिस्तर के बाजू में लोग वचन पढ़ते रहते थे. So if God accepts the high priest, the whole land of Israel is accepted in him. क्योंकि अगर प्रभु ने महायाजक को स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब होता था कि पूरे इजराइल देश को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया. The high priest makes one mistake, the whole land will be judged. अगर महायाजक ने एक भी गलती की तो पूरा इजराइल देश उसका दंड भुगतता था. So when the high priest used to get into the most holy place, the people used to be praying outside. इसीलिए जब महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता था तो पूरा देश उसके लिए प्रार्थना करता था. Your high priest and my high priest has entered into the heavens. आपका और मेरा महायाजक जो है वो स्वर्ग में उसने प्रवेश कर लिया है. So right now at this very moment when God sees you and me, he sees you in your high priest and my high priest. इसीलिए जब प्रभु आज जब महायाजक को देखते हैं तो वो महायाजक में ही आपको और मुझे, हम सबको उस महायाजक के अंदर देखते हैं. Hallelujah. हालेलुया. And the word declares that your high priest and my priest is not standing, he is sitting. और वचन कहता है कि आपका और मेरा महायाजक जो है वो खड़ा नहीं है कि कुछ कार्य बचा है इसलिए खड़ा नहीं है, वो बैठ चुका है कार्य खत्म करके. Everybody for a moment look at me please. सब लोग एक समय के लिए मेरी तरफ देखिए. The word declares every priest standeth daily ministering, oftentimes the same sacrifice which can never take away sins. जो याजक होते थे वो खड़ा रह दिन भर खड़े रह के बलि चढ़ाते थे, सेवा करते थे. उस सेवा द्वारा, बलिदान के द्वारा वो पाप कभी मिटाया नहीं जा सकता था. There was no place in the most holy place to sit. पूरे वो जो पवित्र स्थान है वहां पे ऐसी जगह ही नहीं थी कि जहां कोई जाके बैठ सकता था. But the scripture says, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, went and sat down on the right hand of the majesty on high. लेकिन वचन कहता है ये मनुष्य जिसने एक बलिदान चढ़ाया, पूरा कार्य पूरा करके वो बैठ गया है. That means the work is done. इसका मतलब कार्य पूरा हुआ है. Now, when he's sitting and the moment, he sees us sinning at times. और जब वो बैठ चुका है कार्य पूरा करके, जब वो हमें देखता है कि हम पाप कर रहे हैं, He doesn't immediately get up, अरे पाप कर दिया. Help, clean him. वो वापस उठ के उसे याद नहीं आता, अरे इसने पाप कर दिया, मुझे जाके वापस बलिदान चढ़ाना पड़ेगा. No, he did it once and for all. लेकिन वचन कहता है उसने एक ही बार सदा के लिए वो बलिदान चढ़ा दिया है. With one sacrifice, Christ has perfected us forever. इसलिए मसीह ने हमें एक ही बलिदान के द्वारा पूरी तरह से परिपूर्ण कर दिया है. Chapter 8 verse 24. 8वां अध्याय का 24 वचन. For Hebrews chapter 8 verse 24. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. इब्रानी की पुस्तक 9वां अध्याय 24 वचन. क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थानों में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे. Jesus is our representative in heaven. प्रभु यीशु हमारे ओर से परमेश्वर के सामने खड़े हैं. And as long as Jesus doesn't lose his standing in heaven, you and I, we will never lose our standing with God Almighty. और जब तक यीशु मसीह अपनी उस जगह से, अपने उस स्थान को नहीं खो देता, तब तक हम भी परमेश्वर के सामने हमारे स्थान को कभी खो नहीं सकते. Look at verse 25. Nor yet that he should offer himself often as a high priest enter into the holy place every year with the blood of others. 25वां वचन कहता है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है. When the high priest used to come out of the most holy place, जब महायाजक वहां से बाहर आते थे पवित्र स्थान से, remember they used to tie a rope around his waist.
आपको and याद होगा हमने ankles. बताया था कि वो जब अंदर जाते हैं तो उनके कमर पे एक रस्सी बांधी जाती थी And those waist had 9 bells around his waist. और वो जो रस्सी बांधी जाती थी तो वहां पे 9 छोटी घंटियां लगाई जाती थी। So when the high priest used to walk, the bell used to ring. Tarang, 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 tarang. तो जब वो महायाजक अंदर चलते थे तो वो घंटियों की आवाज आती थी And then when he used to come out, और जब वो बाहर आते थे people used to hear the bell. और जब वो बाहर आते थे तो लोग घंटी की आवाज सुनते थे And then they should start rejoicing. "Oh, the Lord has accepted us. The Lord has accepted us." और उस आवाज से उनको पता चलता था कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया है। Those 9 bells represent the 9 gifts of the Holy Spirit. और वो जो 9 घंटियां है वो पवित्र आत्मा के 9 दानों को दर्शाती है। As long as those bells are ringing in the church, we know that Jesus is still alive. और जब तक ये 9 घंटियां कलीसिया में बजती रहती है तब तक हमें पता है कि यीशु मसीह जिंदा है। So, when the high priest used to come out, जब महायाजक बाहर आता था he used to only say one word: वो एक ही शब्द वो कहता था, finished. पूरा हुआ। When Jesus died on the cross, he said, finished. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा उसका आखिरी शब्द था पूरा हुआ। And the best part is Jesus was not only the high priest, but he was also the lamb and the high priest together. और सबसे बेहतर बात यह है कि वो सिर्फ महायाजक ही नहीं था, वो खुद वो मेमना भी था जो बलि चढ़ाया गया। I would urge you all, मैं आपसे विनती करता हूँ, read the book of Hebrews 10,000 times. जो इब्रानियों की पुस्तक है उसे 10,000 बार पढ़िए। हो सके तो बाहर कर लो पूरा। अगर पॉसिबल है तो आप पूरा याद कर लीजिए इसे। You have no clue what's happening to me in my room. आपको नहीं पता मेरे घर पे क्या हो रहा है। My conscience has been purged by the blood. जो मेरा विवेक है वो मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया गया है। No more guilty conscience. मेरे अंदर कोई भी दुख भरा ऐसा विवेक नहीं है। How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Holy Spirit offered himself without spot to God, purge my conscience from dead works to serve the living God. तो जबकि जो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, वो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। So when we partake in the communion, तो जब हम प्रभु भोज में भाग लेंगे it reminds us that our conscience have been purged by the blood of Jesus. तो जब हम इसमें भाग लेते हैं हमें याद आता है कि हमारा विवेक जो है वो मरे हुए कामों से शुद्ध कर दिया गया है। I can't understand why do people don't leave their chair and start jumping and dancing. मुझे ये नहीं समझता कि लोग कुर्सियों से उठ के डांस क्यों नहीं करते, खुश क्यों नहीं होते कि यीशु ने इतना बड़ा कार्य किया है। I think we got to be asking the Lord, please quicken me this word. या फिर आप प्रभु से पूछ रहे हो कि आप ये वचन मेरे लिए जीवित कीजिए। Hey, come on, saints, by heart the book of Hebrews. तो मैं आपको इसलिए विनती कर रहा हूँ कि ये पूरी पुस्तक आप याद कर लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's rejoice. तो हम आनंद मनाएंगे। Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आए हुए सबका मैं स्वागत करती हूँ किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से। आज की सभा जैसे आप जानते हैं यहाँ हम सभा हर रविवार को सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है। सो कृपया टाइम पे आइए। एंड अनाउंसमेंट का टाइम है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे चर्च की तरफ से जितने भी सेल मीटिंग्स हो रही है, और अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी सेल मीटिंग हो तो प्लीज़ हमारे पास्टर जी से कनेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। सेकंड, हमारे चर्च की तरफ से कई सारी ऑनलाइन मीटिंग्स गूगल मीट के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जो है ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो ट्यूसडे एंड फ्राइडे को 7 बजे है, एंड आई गेस थर्सडे को 2 बजे होती है दोपहर की मीटिंग। सो प्लीज़ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेशन,
प्रेयर रिक्वेस्ट, घोषणाएं, ये हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली करते हैं, जिसका लाभ हम आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे. Amen. एनी दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. और हाँ, किसी की कोई गवाही है तो प्लीज़ हम आके यहाँ पे शेयर कीजिए, हम सबको एनकरेज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे गवाहियाँ हैं हमारे बीच में जो हम बांटना चाहते हैं. तो अगर आपको कोई संकोच है तो आप किसी भी हमारे टीम मेंबर से कनेक्ट हो जाइए, वो आपको गवाही शेयर करने में हेल्प करेंगे. साथ ही साथ जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स है यहाँ पे जो रिकॉर्ड की जाती है, बी इट प्रेज एंड वर्शिप या वर्ड, वो रिकॉर्डेड है, सेव्ड है यूट्यूब पे, तो आप देख लीजिए और आशीषित हो जाइए. आमेन. सो आज का वचन बांटने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी ब्रदर मनोज को, और ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर अमीश को. प्लीज़ तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. How many of you enjoyed worship? कितने लोगों ने आराधना में आनंद उठाया? Did you sense something different today? आपको कुछ अलग लगा आज? Brother Sam was singing in echo. ब्रदर सैम की आवाज गूंज रही थी आज. Amen. आमेन. I really want to thank God for the team that He has given us. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस टीम के लिए जो उसने हमें दी है. The choir every week, when all of us are enjoying our lives, enjoying the weekend, the choir takes out time from their busy schedules and goes and prepares so that they can come here and lead you all in worship. हम लोग जब शनिवार को छुट्टी का आनंद उठा रहे होते तब हमारा जो कॉयर है वो समय निकाल के प्रैक्टिस करते हैं सारी चीज़ों का जो यहाँ पे संडे को होती है. And even the crew members, many of whom I'm not able to see today, but usually they are taking time, they're coming early, they're setting up things, and I saw Brother Amish was really busy today. और बाकी लोग भी जो क्रू के लोग हैं, काफ़ी लोग आज नहीं हैं लेकिन वो लोग जल्दी आते हैं और सारा सेटअप करते हैं, और मैं भी थोड़ा बिजी था आज. You know, I want to tell you, just keep looking at these people's lives, and over the next 5 years, you will see them prosper like no one else. मैं कहना चाहूँगा कि आप इनके जीवन को देखते रहिए. मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 5 सालों में आप इनको इतना समृद्ध होते हुए देखोगे. You know, when you take a piece of your life, when you're giving time to the things of God, it's like you're taking a piece of your life and giving it to God. जब आप परमेश्वर के चीज़ों के लिए समय निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये होता है आपके जीवन का एक हिस्सा निकाल के आप प्रभु को अर्पित कर रहे हो. And when you're sowing this piece of your life in the kingdom of God, God is not a debtor, and God rewards His children and His servants greatly. और जब आप अपने जीवन का ये हिस्से को प्रभु के लिए चढ़ाते हो तो प्रभु किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, वो उसको बहुत गुना करके लौटाता है. So I'm telling you, just keep looking at these people. You're going to see them go to a very high level in their lives. मैं कहना चाहूँ कि आप इन लोगों के जीवन को गौर से देखते रहिए. आप देखोगे कि ये अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों तक जाएंगे. Yeah, let's pray. हम प्रार्थना करेंगे. Father, we thank you for this day. प्रभु हम इस दिन के लिए धन्यवाद करते We हैं. thank you, Lord, for your presence, that you're present among us. मैं आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ. आप यहाँ पे मौजूद है. And Father, we thank you that when you are present, there will be miracles, signs, and wonders. और पिता मुझे पता है जहाँ कहीं आपकी उपस्थिति होती है वहाँ पे चिन्ह चमत्कार होते हैं. Because you are a living God. क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर हो. And Father, right now we raise our expectations on you. और इस समय प्रभु हम हमारी उम्मीद को बढ़ाते हैं प्रभु. We desire to receive from you. हम इच्छा रखते हैं कि हम आपसे पाए. We receive this word that you're going to share with us, Lord. हम आपके इस वचन को स्वीकार करते हैं And प्रभु. we thank you that it's going to be like a seed, it's going to transform our lives, it's going to be planted in our hearts. और हमारा विश्वास है कि ये जो वचन है वो एक बीज की तरह हमारे दिल में बोया जा रहा है. Father, we thank you for all the wonders that you have done in our life, that you're doing, and that you will be doing hereafter in our lives, Lord. और प्रभु मैं हर उस चमत्कार के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पे कर रहे हैं और हमारे जीवन में करने वाले हैं. Father, we thank you that our lives will be full of proof that our God is a living God.
और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारा जीवन उस सबूतों से भरा होगा कि हमारा परमेश्वर जीवित है। Amen. आमेन। Yeah, so last week we started a new series on righteousness. तो पिछले हफ्ते हम एक नई श्रृंखला शुरू की धार्मिकता पे, But I was still, I'm known for going back. और मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं रिवर्स में आके वापस करता हूँ चीज़ें। So if I miss a week on the Bible study, I'll throw a question that people go back 2 chapters in the Bible study. अगर मैं बाइबल स्टडी मिस करता हूँ तो मैं आके ऐसा प्रश्न पूछता हूँ कि लोगों को वापस पिछले हफ्ते का बाइबल स्टडी करना पड़ता है। And so they initially when I ask the question they get irritated, but in the end they start thanking that I asked the question. पहले जब मैं सवाल पूछता हूँ तो वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब उत्तर मिलता है तो अंत में मुझे थैंक यू बोलते हैं। So I had it in my heart to share on faith, but I never got the opportunity because I was sharing on different things when I shared last. तो मेरे हृदय में था ये कि मुझे विश्वास के ऊपर बात करनी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने संदेश दिया था, मैंने कुछ और संदेश दिया था। How many of you enjoyed our series on faith? कितने लोगों ने विश्वास के उस सीरीज का आनंद उठाया हमारे? How many? I want to see hands. मैं हाथों को देखना चाहूँगा। How many of you have gone back and tried to listen to the playlist again? कितने लोगों ने पीछे जाके ट्राई किया कि हम वापस उस मैसेज को सुने? Okay, I believe the Lord is convicting us. तो प्रभु हमें आज बता रहा है। Uh, I believe today will be like a basic understanding of what we've learned. तो आज जो होगा वो एक बुनियादी समझ होगी उसके बारे में जो हमने सीखा है। But I believe the Holy Spirit will take us in much more depth than we've been now. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा हमें काफ़ी गहराई में लेके जाएगा। So let's go to Hebrews 11:1. तो हम जाएंगे इब्रानियों की पुस्तक 11वां अध्याय पहला वचन। The word says, "Now faith is the substance of things hoped for." तो ये वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय The evidence of things not seen. और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। How many of you understand this? कितने लोगों को ये समझा है? Okay, let's move on then. तो हम आगे जाते हैं। No. This verse says, "Faith is the substance of things hoped for." ये वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। The substance is something that we learn in, 2nd, 3rd standard in school. तो जो प्रमाण जो कहता है लाइक सब्सटेंस के बारे में हमने सीखा है। We learn about matter and we learn about atoms and nucleus and all of that. It's basically something that you can feel or sense or discern in a way, right? ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। So faith, I believe many of the children of God, they don't really use faith in our day-to-day lives. और मेरा मानना है कि प्रभु के बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे रोज के जीवन में विश्वास का इस्तेमाल ही नहीं करते। And yet it is a very, very powerful and potent weapon that God has given us. लेकिन ये जो है, ये विश्वास जो है, ये बहुत सामर्थशाली हथियार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। We'll go to one more verse. हम और एक वचन में जाएंगे। Ephesians 6:16. इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 16 वचन। The verse here says, "Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one." और ये वचन कहता है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। So here we see God is through Paul telling us that faith is a shield. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रभु प्रेरित पौलुस के द्वारा हमें बता रहे हैं कि विश्वास जो है वो ढाल की तरह काम करता It है। is a shield meant to quench all the fiery darts that the enemy throws at us. और ये ढाल उसके लिए दी गई है ताकि शत्रु के जो जलते हुए तीर हमारे ओर आते हैं उन्हें हम बुझा पाए। Which means faith is your defense mechanism as well. इसका मतलब विश्वास जो है वो आपकी सुरक्षा का सिस्टम भी है। It has the ability to quench and negate all the attacks that the enemy is bringing against you. इसमें वो सामर्थ्य है कि शत्रु के सारे
हम लोग को वो खत्म कर सकता है. And yet, many of us have struggled physically, financially, spiritually, emotionally, and we've been victims of the attacks of Satan over and over in our lives. ये हथियार हमारे पास होने के बावजूद हम लोग काफ़ी बार आत्मिक तौर पे आर्थिक तौर पे हमारी सेहत में बहुत बार हमने बहुत संघर्ष किया है. This means we've not been using our shield of faith to defend against the attacks of the enemy. क्योंकि हम इस विश्वास की ढाल को हमने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया ताकि हम शत्रु के हमलों को रोक सके. We'll go to one more verse. हम और एक वचन में जाएंगे. It's in 1 John. पहला यूहन्ना Is it 3-4? This is the victory. It's in 5:4. 1 John 5:4. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4था वचन. The word says, "For whatever is born of God overcomes the world." ये वचन कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है. And this is the victory that overcomes the world, our faith. और यह विश्वास यह विजय वो है यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है. Our faith is the victory, it is the power that helps us overcome the world. Any limitations, any attacks that this world is able to bring against us. Our faith is the victory that helps us overcome this world. ये जो हमारे पास विश्वास है वो एक ऐसा सामर्थ है जो हमें संसार के हर हमलों पे संसार के ऊपर जय दिलाता है. And so what we understand is faith is a very, very powerful and effective weapon which the children of God have not been using. इसका मतलब विश्वास ऐसा हथियार है जो बहुत सामर्थ्यशाली है लेकिन विश्वासी उसका इस्तेमाल ही नहीं करते. Because many a times we get stuck in the biblical terminologies and we never really understand the meaning of what it means. ये इसलिए होता है कि हम बाइबल की शब्दों पे हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम उसका सही मतलब ही नहीं समझ पाते. See, when this series was going on for the last month and a half, we learned that faith is already been given to us by God, right? तो जब ये पूरा संदेश हम सुन रहे थे पिछले 1.5 महीनों से तो हमें ये पता चला कि विश्वास जो है परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे दिया है. And so how do we use it? तो अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है. Firstly, we have to understand what it is. पहले हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है. Okay, now come back to Hebrews 11:1. हम वापस जाएंगे इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय The पहला word वचन. says faith is the substance of things hoped for. ये वचन कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है. It is a substance. It gives substance. Like this stand right here is a substance. ये वस्तुओं को आकार देती है. जो ये जो स्टैंड आप देख रहे हो ये स्टैंड देख रहे हो इसमें एक सब्सटेंस है. Now we can understand this through an example of a pregnant woman. ये हम एक गर्भवती स्त्री के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं. The swelling of the stomach is the substance of the child that is to come. और जो गर्भवती स्त्री का जो पेट होता है जब वो बड़ा होने लगता है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो बच्चा है उसके आकार की वजह से वो पेट भी बड़ा हो रहा है. It is a substance of the child that is to come. तो ये उसका प्रमाण है कि अंदर जो बच्चा है जो आने वाला है उसका प्रमाण है, ये उसका सबूत है. It is the evidence of the child that is not yet seen. तो वो उस बच्चे के होने का सबूत है जो अभी हमें दिख नहीं रहा है. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. So similarly, in this example, the belly of this woman being swollen is the substance of the child which is not yet seen. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गर्भवती स्त्री का जो पेट है जो वो बड़ा हुआ है
तो वो उसकी वजह से हुआ है कि उसके अंदर जो बच्चा है उसके आकार की वजह से उसका पेट भी बड़ा हुआ है. Now, if you speak to this woman, अगर आप उस गर्भवती स्त्री से बात करोगे, what do you think that her belief is about this child? आपको क्या लगता है उसका विश्वास क्या होगा उस बच्चे के बारे में? That she is not yet able to see this child. उसने अभी तक वो बच्चे को देखा भी नहीं है. But she, like, if you try to convince her that this child does not exist, she'll claw your eyes out. अगर आप उसको ये समझाने बैठ जाओ कि ये बच्चा, ये जो पेट के अंदर है ना, ये बच्चा नहीं है, अगर आप उसको समझाने बैठ जाओ तो वो आपके आके नोच लेगी. Husbands can agree. पति इससे सहमत हो सकते हैं. It means this woman is fully convinced that this child exists and it is going to manifest, though right now it has not manifested. इसका मतलब वो जो स्त्री है वो पूरी तरह से उसने विश्वास कर लिया है कि अंदर बच्चा है, दिख नहीं रहा है लेकिन है और वो आने वाला है. And if you try to convince her saying, "Arey, no, you're not pregnant. This is not a baby. You just have gas," she'll claw your eyes out. और अगर आप उसको समझाने बैठ जाओ कि अरे नहीं ये बच्चा वगैरह नहीं है, तुमको गैस हुआ है इसलिए पेट बड़ा हुआ है, तो आपको मारेगी. It's because she's convinced to that degree. ये इसलिए है कि उसका विश्वास उस हद तक पहुंच चुका है. It is so real in her that she's able to experience it and tangibly feel it. और उस खुद के लिए, उस स्त्री के लिए वो इतना असली है कि उसको वो महसूस कर पाती है. That's exactly what faith is. यही विश्वास है. When we are so confident of the word of God, of a particular promise that God has given us, when we are so confident that no circumstance, no person, no one can shake us off of this belief, even though we are not seeing the manifestation. यही विश्वास होता है कि हम प्रभु के वचन के बारे में, जिस वचन पे हम खड़े हैं, जिस वचन को हम ले के चल रहे हैं, उस वचन की सच्चाई के लिए हम इतना हमने विश्वास कर लिया है कि इस दुनिया की कोई भी सच्चाई हमारे अंदर के विश्वास को हिला नहीं सकती, बदल नहीं सकती. So faith is the substance of the things hoped for. It is not the thing that you've hoped for, but it is substance. It is evidence and proof of the thing that you are believing for. अब विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है. विश्वास वो वस्तु नहीं है जिसके लिए आप विश्वास कर रहे हो, लेकिन उसका एक भाग है, एक छोटा सा रूप है जो विश्वास है. Amen? Amen. Similarly, if we see the example of a farmer, और ऐसे ही अगर हम एक किसान का उदाहरण लेते हैं, a farmer who has planted seeds in his farm, and you know, it's like one day after the seed, you go and meet him and you say your field looks empty. और अगर आप किसी किसान के पास जाओगे जिसने कुछ दिन पहले बीज बोया है, और आप उसको जाके अगर आप कहोगे कि अरे तुम्हारा फसल कहाँ पे, सब खाली दिख रहा है, He's going to call you a fool because he understands how the seed works and he has faith that what he has planted is going to produce a harvest in a short time. आप उसके सामने मूर्ख ठहरोगे क्योंकि उसे पता है कि जब मैं बीज बोता हूँ तो क्या होता है और फसल आती है. Even though you and you both are looking at a field that is showing no signs of a crop, yet your belief is entirely different and his belief is entirely different. जबकि किसान और आप दोनों भी उसी खेत को देख रहे हो जो सेम दिखता है, उसकी नज़र से भी खाली है, आपकी नज़र से भी खाली है, लेकिन उसे पता है कि ये जो बीज मैंने बोया है वो आने वाला है, और आपका विश्वास ऐसा नहीं है. So when he looks at this piece of ground, he rejoices, whereas you think there is no reason to rejoice. और वो उस बीज बोने के बाद वो खुश हो रहा है कि अब उसका काम हो चुका है और वो खुश हो रहा है, और उसी खेत को देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसमें खुश होने की क्या बात है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है. Now you may be bothering the farmer like, I need corn right now, but there is no corn. So like, why are you happy? But he understands that even though he needs the corn now, in some time this harvest is going to be so much that he can have all of his needs fulfilled and there will be an overflow. आप दोनों को भी उस फसल की ज़रूरत है, वो फसल आपको चाहिए, आपको अभी चाहिए, और उसी बात को लेके आप दुखी हो रहे हो. लेकिन वो समझता है, किसान समझता है कि मैंने जब बोया है तो कुछ समय की बात है, उसके बाद इतनी फसल आएगी कि मेरे पास मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा होने वाला है. See, faith is not coming here and testifying after the miracle is completed and rejoicing, saying, Hallelujah, God is faithful. और विश्वास ये नहीं कि जब सब कुछ होने के बाद आके कोई गवाही देता है कि अरे ये सब हो गया, प्रभु विश्वास हो गया, हालेलुया. Faith is
doing that same expression in the middle of your fire, that is faith. और विश्वास ये होता है कि जब आप आग के अंदर हो, जब आप परीक्षा से गुजर रहे हो, तब भी आप वही चीज कर रहे हो, तब भी आप उसी आनंद को मना रहे हो. So faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of what we are not yet seeing. इसलिए विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और उन वस्तुओं का सबूत है जो हम नहीं देख पाते. But it is not like because you're not seeing it, there is no feeling inside you, there is no nothing, and you say, okay, yeah, I believe, because I'm not able to feel it either. और ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको अंदर से कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप मुंह से बोल रहे हो कि नहीं मैं विश्वास करता हूँ. See, we've often, you would have heard that faith and feelings are two different things. आपने बहुत बार सुना होगा कि विश्वास और अनुभव ये दोनों अलग चीज़ें हैं. No, faith and feelings. ओके, विश्वास और हमारी जो भावनाएं हैं वो दोनों अलग है. So I'm not talking about feeling faith, इसलिए मैं विश्वास को महसूस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ. but there is something that is more constant than a feeling, because a feeling can come and feeling can change. क्योंकि एक महसूस जो अपना महसूस जो करते हैं वो हमेशा सेम नहीं होता है. कभी कम महसूस करते हैं, कभी ज़्यादा महसूस करते हैं. Like now if I tell you a sad story, I can make you all cry. अगर मैं आपको एक दुख की कहानी अभी बताऊं तो मैं आपको रुला सकता हूँ. And if I tell you one of Vishwas brothers' jokes, then I can make all of you laugh. और अगर मैं आपको विश्वास ब्रदर का कोई जोक बताऊं तो आपको हंसा भी सकता हूँ. Because your feelings can change. क्योंकि आपकी जो भावनाएं हैं वो बदलती रहती है. But faith is something that is way beyond feeling. It will not change. It will be constant. Whether you're feeling good, whether you're feeling bad, that faith will be constant in you. लेकिन विश्वास ऐसी बात है जो कभी बदलती नहीं है, वो हमेशा एक समान रहती है. आप दुखी हो, खुश हो, विश्वास वैसे ही रहता है. So the faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. इसीलिए विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. And if you read the rest of Hebrews, we see that through faith people have achieved all the things that God called them to do. और हम इब्रानी की पुस्तक जब पढ़ते तो हमें पता चलता है कि विश्वास के द्वारा इन लोगों ने वो सारी चीजें की जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था. We'll go to Hebrews 11:7. हम 7वें वचन में जाएंगे. It says, by faith Noah, being divinely warned of the things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. और ये कहता है विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है. Do you understand that until the time of Noah, there was no rain that had ever come to this earth? क्या आप समझ पा रहे हो कि नूह के समय तक धरती पे कभी भी बारिश ही नहीं हुई थी. So when God told him that I'm going to cause rain to fall, the water is going to open up from the ground, there was no example for him to have seen or relate to it. इसका मतलब जब नूह से परमेश्वर ने बात की और कहा कि मैं धरती पे बारिश लाने वाला हूँ और जो गहराइयों की जो कुएं है वो भी खुलने वाला है और पूरी धरती पानी से भरने वाली है, तो नूह को इस बात पे विश्वास करने के लिए कुछ उदाहरण ही नहीं था कि ये पहले हुआ ही नहीं है कभी, तो मैं कैसे विश्वास करूं. Can you imagine? He had never seen what rain looks like. क्या आप विश्वास कर सकते हो कि उसने कभी देखा ही नहीं है कि बारिश कैसे होती है. And in that state, it says, he was warned of God of the things which are not yet seen. He moved with fear, meaning he believed it to such an extent that there was this terror inside him, there was this awe and fear inside him with which he began to prepare this ark. और ये वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने उसे ये बात बताई तो उसके अंदर एक परमेश्वर के लिए एक भय उत्पन्न हुआ और उस भय के द्वारा उसने जाके वो जहाज बनाया जिसके द्वारा उसके परिवार का उद्धार हुआ. So through faith he was able to believe God and build this ark, and he was able to save his entire family. इसका मतलब विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के भय में चल के उस जहाज को बना पाया जिससे उसका उद्धार हुआ. We'll read the next verse. हम अगला वचन देखेंगे. It says, by faith Abraham obeyed
when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. इसका मतलब अगला वचन कहता है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मेरा विरासत में लेने वाला था. And he went out not knowing where he was going. By faith, he dwelt in the land of promise as in a foreign country. और ये न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर. So Abraham here is with all of his family, with all of his people, and he's very comfortable in this place. And God calls him out, and God doesn't even tell where you're going. और अब्राहम जब उसके घर में रह रहा था तो सब अच्छा चल रहा था, उसका परिवार उसके साथ था, सब कंफर्टेबल था. और वहाँ पे परमेश्वर ने आके उससे कहा कि अपने देश से, अपने परिवार से निकल और ऐसी जगह चल जो मैं तुझे दिखाता हूँ, जो अब्राहम ने नहीं देखी है. And so again, he's going out without having any evidence, without having any example of where I'm going and how it is going to look. Is it going to be better than where I am now? He did not think any of that. He just believed God and he stepped out into something that he had never seen. इसका मतलब जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गया, जबकि उसे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो जगह कैसी है, वहाँ पे मैं रह पाऊँगा, वहाँ पे क्या होगा, उसे कुछ पता नहीं था. लेकिन सिर्फ विश्वास करके, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके वो निकल गया. And all of their faith is based on this next verse. और उसका जो पूरा विश्वास है वो अगले वचन में दिया गया है. We'll go to Hebrews 11:11. हम इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय 11वें वचन में जाएंगे. Here it says about Sarah, it says, by faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. और 11 वचन कहता है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था. She judged him who had promised as being faithful. क्योंकि उसने, जिसने प्रतिज्ञा दी थी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, परमेश्वर को उसने सच्चा जाना था. You know, faith, when you really boil it down, it is simply believing that God is faithful and he will do what he has said he will do. और विश्वास का मतलब ये है, अगर आप गहराई में जाके आपको एक ही मतलब मिलेगा कि विश्वास का मतलब ये है कि सच में विश्वास करना कि परमेश्वर सच्चा है और वो कहता है वो करता है. In the face of all the adversities and all the issues that we face, it is just trusting that Father, you are faithful and you've promised me your word that you'll bless me, and I believe that you are faithful to keep this promise. और विश्वास ये है कि हम, हमारे जो सारे संघर्ष होते हैं, हमारे विश्वास के खिलाफ जो चीज़ें आती है, जो बातें होती है, उस बातों के सामने खड़े होके ये विश्वास करना कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जो तूने बोला है, जो तेरा वचन है मेरे लिए वो सच है और तू वो वचन पूरा करने वाला है. I don't want to go there मैं वहाँ नहीं जाना चाहता because I know I'll not recover if I go क्योंकि there. मैं वहाँ से वापस नहीं आ पाऊँगा, But I feel we should go there. लेकिन हमें Numbers- वहाँ पे जाना चाहिए. Numbers 13. गिनती 13वां अध्याय. We'll read from verse 26. हम 26 वचन से पढ़ेंगे. It says, now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness at whatever place. They brought back word to them and to all the congregation and showed them the fruit of the land. Then they told them and said, we went to the land where you sent us. It truly flows with milk and honey. And its fruit, and this is its fruit. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. The Amalekites dwell in the land on the south, the Hittites, Jebusites, and all the rest of them. Then Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it.
But the men who had gone up said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we. And they have children, and they gave the children of Israel a bad report of the land." तो 26 वचन से हम पढ़ेंगे और ये कहता है, और पारान जंगल के कादेश नामक स्थल में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु यह देश के निवासी बलवान है और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी, अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने यस So here we see 12 spies go into the promised land, they spy it out, and they're coming back, and they themselves say that this land is truly flowing with milk and honey. और जब 12 जासूस भेजे जाते हैं उस प्रदेश में, तो वो जब वापस आते हैं तो अपने मुख से वो कबूल करते हैं कि हाँ, ये देश जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही है। In our terms, it would be like, okay, this promise about the healing really looks good. It really, like, if this were to ever happen, it really looks good that, I would have no pain in my body, I would have no weakness. It looks really good. ये हमारे जीवन में अगर हम लागू करते हैं तो ऐसा है कि ये जो चंगाई का वचन जो है वो परमेश्वर का वादा है, वो सोचने में, देखने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे मेरे पास ऐसा जीवन होगा जहाँ पे मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, मेरे शरीर में कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, दर्द नहीं हो रहा है, मैं एकदम अच्छा हूँगा। ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। Or for finances, if we say, the Lord is the one who gives us power to get wealth. This promise looks very beautiful. If this were ever to happen, it would be so beautiful, it would be so amazing. और ये जो एक वचन जो है जो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें धन पाने की शक्ति देता है, ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सोचने में अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमें सब देना चाहता है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। And so this is what they say, and after that they say, but there are giants in the land, there are all of these issues because of which we can never accomplish, we can never reach that goal. तो ये सब अच्छी बातें बोलने के बाद वो कहते हैं, लेकिन उस प्रदेश में ऐसे लोग हैं, सामर्थशाली लोग हैं, इसलिए ये सब अच्छी अच्छी बातें ये हमें नहीं मिल सकती। Though God has promised us, but these giants seem to be, really working out. So I don't know if God can match their power. जबकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, लेकिन वहाँ पे जो बड़े बड़े योद्धा लोग हैं जो जिम जाते हैं, बहुत बॉडी है उनके पास, तो मुझे नहीं पता परमेश्वर उनका सामना कर पाएगा कि नहीं। Every time we've dropped our shield of faith, that's basically what we've prophesied, saying this financial issue, this pain, this sickness, these issues are bigger than what my God can handle. जब भी हम हमारे विश्वास की ढाल को नीचे रख देते हैं तो हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो परमेश्वर हमारे लिए कह रहे हैं, जो चंगाई है, जो उन्नति है, जो हमारे लिए परमेश्वर ने वादा किया है, ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता। We'll go to Numbers 13:33. हम आखिरी वचन में जाएंगे 33। It says, there we saw giants, the descendants of Anak, that came from giants. फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। And we were like grasshoppers in our own sight, and so were we in their sight. और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। So they're saying we saw ourselves as grasshoppers, and even they were seeing us like grasshoppers. इसका मतलब वो कह रहे कि हम खुद को टिड्डे जैसा समझ रहे थे, कीड़े जैसा समझ रहे थे, और वो लोग भी हमें वैसे ही समझ रहे हैं। After 40 years, when the Israelites actually go and claim the land, they realize the actual perspective
of the giants that they held at that time. और 40 साल बाद जब इज़राइल के लोग वहाँ पे जाते हैं उस प्रतिज्ञा के प्रदेश में, तब उन्हें पता चलता है कि ये जो बड़े बड़े अनाकवंशी है वो उनके बारे में क्या सोच रहे थे, उनको तब पता चलता है. Are you understanding what I'm saying? क्या आपको समझ रहा है? In Numbers 13:33, the children of Israel are saying, we were like grasshoppers in our eyes and we were like grasshoppers in their eyes. गिनती की इस पुस्तक में वो इज़राइल के लोग कह रहे कि हम उनके सामने टिड्डों के समान थे और उनके नज़र में भी हम टिड्डों के समान थे. But what mistake they had done is they had not interviewed one of the giants and asked them what he really thinks about us. और यहाँ पे उन्होंने गलती की कि उन्होंने जाके वहाँ का एक जो अनाकवंशी होगा, दानव होगा, उसको जाके माइक लेके पूछा नहीं कि ब्रदर आप हमारे बारे में क्या सोचते हो. They got to know that after 40 years of roaming and dying in the wilderness. वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनको 40 साल बाद जंगल में घूम के मरने के बाद उनको पता चला. When they go in, I believe it was Rahab who tells them that when we heard that God parted seas and destroyed kingdoms for you and the entire army of Egypt, our hearts melted away within us. और जब वो 40 साल बाद उस यरीहो के दीवार के पास जाते हैं, वहाँ पे राहाब जो होती है उसके पास जब ये लोग पहुँच जाते हैं तो राहाब उनको बताती है कि 40 साल पहले हमने सुना था कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें मिस्र देश से कैसे निकाला, समुद्र को डुबा के निकाला. ये सब हमने जब सुना तो हमारी पूरी सेना डर गई थी, कांप उठी थी. On the same day in Numbers 13:33, when the children of Israel were saying, we are like grasshoppers in our eyes and so are we in their eyes, actually those giants were shivering and trembling behind the walls, scared, and their hearts were melting away inside them. ये उसी दिन हुआ जिस दिन ये लोग आके बता रहे कि हम उनके नज़र में टिड्डों के समान है. ये उनके बारे में ऐसा सोच रहे कि वो ऐसे है, और यहाँ पे ये बड़े बड़े दानव कांपते हुए उनके दीवारों के पीछे छुप गए थे कि यार ये लोग नहीं आनी चाहिए यहाँ पे. You can imagine the conversation inside the giants, they're like, अरे अभी भाग के किधर जाए? Their God has destroyed all of these armies, now we are dead. They might be writing their will or whatever, मरने के पहले जो करते हैं LIC वगैरह निकाल के, they might be doing all of those things, and right outside the children of Israel are having a praise party for the devil. और वहाँ पे ऐसे हो रहा था कि ये लोग जैसे बात आप कल्पना कर सकते कि ये जो दानव लोग हैं यहाँ पे उनकी क्या बातें चल रही होगी अंदर. वो लोग सोच रहे थे कि अरे ये लोग अभी क्या करें, हम कहाँ पे भागेंगे, अभी इनका परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, और अभी क्या करना चाहिए, चलो हमारा आखिरी दिन है, अभी हम वसीयत लिख लेते हैं, इसके नाम पे ये होगा वो होगा, सब हमारा क्रियाक्रम कर देते हैं. और लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि इज़राइल के जो लोग हैं वो शैतान की स्तुति आराधना कर रहे हैं कि ये कितने बड़ा है. No, on a serious note, when some time back Indian Army conducted Operation Sindoor, we saw how this blackouts and how this war preparation was done on the border areas, right? अभी कुछ महीना पहले जब हमारी सेना ने वो एक आतंकवादियों के खिलाफ एक एक्शन किया था, तो अब हमने देखा था कि बॉर्डर पे कैसी तैयारी होती है, ब्लैकआउट किए जाते हैं. You can imagine that entire nation of these giants were preparing as if they are going to die tomorrow, and they were doing that with so much of terror. And on this side, these mighty children of God were saying, we are grasshoppers. They were playing grasshopper, grasshopper. और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारे जो दानव लोग हैं वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता चल गया अभी हमारा समय आ गया है, वो डर के बैठे हैं. और दूसरी ओर जो महान परमेश्वर के बच्चे हैं वो डर के कह रहे हैं कि हम तो टिड्डों के समान हैं. I'm sure, the devil has photos of many believers on his wall. Like he's like, he might be putting agarbatti and all because of the inspiration that they gave him. और ऐसा भी हो सकता है कि शैतान के कमरे में काफ़ी विश्वासी होंगे, उनका फोटो लगा होगा कि ये मेरी प्रेरणा है, इनसे मैं बहुत सीखता हूँ. Because even I could not think of a way to scare you so much, जितना तो खुद से डर गया है. हाँ, मैं ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था कि तुमको कैसे डरो, लेकिन तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, खुद ही रास्ता ढूंढ लिया डर के बैठ के. Amen. Amen. God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. परमेश्वर ने हमें डर का नहीं लेकिन सामर्थ और प्रेम का आत्मा दिया है. In this entire millions and millions of people, there were only 2 people who said, we can go up and we can take them, for they are like bread for us.
और इन लाखों इजरायली लोगों में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो ऐसा कह रहे थे कि हम जाके उन पे हमला कर सकते हैं, वो हमारे लिए रोटी के समान है, हम उनको खा जाएंगे। Which means out of the millions and millions of people, only 2 people judged that God who promised is faithful to accomplish that promise. इसका मतलब लाखों लोगों में से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर को सच्चा जाना और ये विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने कहा है वो हमारे द्वारा वो पूरा कर सकता है। And those 2 people got the privilege of leading the next generation into the promise of God. और सिर्फ यही 2 लोग थे जिनको अगली पीढ़ी को युद्ध में आगे ले जाने का सौभाग्य मिला। And it says about one of them, that Joshua, that in his time all the promises of God were fulfilled that he had made to the children of Israel. और उसमें से यहोशू था जिसके बारे में कहा गया था कि उसकी जीवन काल में परमेश्वर का हर एक वादा पूरा हुआ। How wonderful it would be that if it could be said about, people among here, that in their life all the promises of God were fulfilled and it became real. ये कितनी महान बात होगी अगर आप में से किसी एक के बारे में ऐसा कहा जाए कि आपके कार्यकाल में, आपके जीवन काल में परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक वादा पूरा हुआ। Amen. आमीन। Faith is the substance of things hoped for, it is the evidence of things not seen. विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। It is simply judging that God who has promised me something is faithful to accomplish that promise, regardless of my shortcomings, regardless of where I lack, regardless of how great the opposition is. और ये विश्वास ये है कि हम परमेश्वर को पूरा विश्वास योग्य जानते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उसका हर एक वादा वो पूरा करेगा, इसके बावजूद कि उस वादे के खिलाफ क्या हो रहा है, कौन सी परिस्थिति आ रही है, कौन उसके खिलाफ खड़ा है। So faith comes by hearing and hearing by the word of God. इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। Now the kind of faith that comes by hearing the word of God is the God kind of faith. और जो विश्वास सुनने के द्वारा आता है वो परमेश्वर का विश्वास होता है। But there are many people who are very advanced in the devil's kind of faith as well. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शैतान के विश्वास में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। People who deal with fear and torments, and in general we've all faced insecurities and fears of uncertainty. What happens if I lose my job, what happens in the future, that kind of fear. और एक ऐसा शैतान का विश्वास ऐसा होता है कि हम डर के रहते हैं या हम असुरक्षा में जीते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी नौकरी चली गई तो कल क्या होगा। Because that fear also comes by hearing. क्योंकि ये जो विश्वास है ना, ये भी सुनने से ही आता है। As we hear the things that are happening in this world, and we hear, Christians are being persecuted, we hear that economy is going down, and the more we hear this, the more we have faith and the more we align ourselves to be in a place where we receive this promise from the devil. और ये विश्वास जो है ये भी सुनने से आता है। जब हम समाचार पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रहा है, युद्ध हो रहा है, तो ये सब जब हम सुनते हैं तो उससे भी हमारे अंदर एक डर आता है जिसे शैतान का विश्वास कहते हैं, वो आता है और धीरे धीरे हम खुद को तैयार करने लगते हैं कि हम कैसे इसके साथ, इसके तरीके से जीना हम सीख जाए। Yeah. I shouldn't say this. But yeah, it might be, like some of the believers that the devil sees, just like God was boasting about Job, devil might be boasting about some believers like that. तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहते थे कि क्या तूने ऐसा मनुष्य देखा है जो पूरी धरती पे धार्मिकता में चलता है, वैसा शैतान ऐसे विश्वासियों के बारे में बोल सकता है कि क्या तूने ऐसा मनुष्य देखा है जो पूरी तरह डर में रहता है। Amen? Amen. So faith comes by hearing and hearing by the word of God. And so as we hear the word of God, we understand what God has actually promised us. इसलिए विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से आता है और विश्वास तब आता है जब हमें पता होता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। Now we have all heard over the past few weeks that we've been given the faith of God. We've been given the faith of God. We don't have to ask Him for more faith. We've already been given faith. और हमने ये विश्वास के बारे में जब हम सीख रहे थे तो हम ये सीख चुके हैं कि परमेश्वर ने हमें विश्वास दे दिया है, पहले से ही दे दिया है, हमें परमेश्वर से और विश्वास मांगने की जरूरत नहीं है।
but we'll go to one verse, लेकिन हम एक वचन में जाएंगे, 2 Thessalonians 1:3. दूसरा थिस्सलुनीको 1:3. पहला अध्याय तीसरा वचन। Paul here is saying, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is fitting, because your faith grows exceedingly, and the love of every one of you all abounds toward each other. यह वचन कहता है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। So we see that God has given us the faith in our spirits, but there is a process where this faith has to be grown so that we can start seeing the manifestations of the things that God has promised us. तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें विश्वास तो दिया है, लेकिन इस विश्वास को बढ़ाना भी है, उसका भी एक अलग प्रक्रिया होता है, वो होना जरूरी है कि ताकि हम हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो वादा किया है उसको पूरा होते दिखे। So faith grows by two things. तो विश्वास दो बातों से बढ़ता है। It's feeding on the word of God, वचन ज़्यादा से ज़्यादा हम जब वचन सुनते हैं, and the second thing is exercising the faith that you already have. और दूसरा जो हम हमारे पास जो विश्वास है उस विश्वास को हम कार्य में लाते हैं। तब If we are just feeding and feeding and feeding and feeding, and if we've never used it, then we'll be like this chubby, teddy bear. और अगर हम सिर्फ वचन सुनते जा रहे, लेकिन उसके लिए हमने कभी जाके कार्य नहीं किया, उसको कार्य में नहीं लाया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो हम विश्वास में मोटे हो जाएंगे। We'll be able to win every argument, with wherever it's the argument with regard to doctrine or something. We'll be able to win that, but we'll be, very plump Christians. तो ऐसा हो सकता है कि विश्वास में ऐसे अगर हम सिर्फ वचन ले रहे, पढ़ रहे, मनन कर रहे, तो लेकिन उसका अगर हम उपयोग नहीं कर रहे, तो हम ऐसे विश्वासी बनेंगे जो जब बहस करने की बात आती है डॉक्ट्रिन को लेके, शिक्षा को लेके, वचन को लेके, तो हम हर बहस को जीतेंगे, लेकिन हम ऐसे ही रहेंगे, मोटे रहेंगे। Because faith that is not utilized just stores up like fat, and you never know if it will work because you've never worked that muscle of faith. तो ये जो विश्वास है, ये जो बड़ा हुआ है आपके अंदर, वो वैसे ही रहेगा, वो कभी काम नहीं करेगा जब तक आप उसे काम में नहीं लाओगे। So the faith that the word of God that we hear and we believe, we need to take those promises and start confessing them and declaring them, and then act out in faith, discerning the voice of God. तो ये जो विश्वास हमारे अंदर है, उसे हमें कार्य में लाना है, वचन की घोषणा करके हमारे मुख से हमें वो बोलना है, और उसके अनुसार हमें कार्य भी करना है, ताकि जो विश्वास हम कर रहे हैं उसको हम प्रकट भी कर पाए। Only then will our faith grow, and then we will have linear growth in faith. सिर्फ तभी ऐसा होगा कि हमारे विश्वास में एक ऊपर की ओर हम बढ़ते हुए जाएंगे। It's like God has many dinchak pujas in the body of Christ, I feel. I don't know how to translate that. It's like how many of you know what dinchak puja is? कितने लोगों को पता है? So it's basically this very talentless girl who just made up like a stupid song and she became viral overnight. तो एक लड़की थी जिसमें कुछ भी टैलेंट नहीं था, लेकिन उसने एक बहुत ही बेकार सा गाना बनाया, लेकिन वो गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, तो वो फेमस हो गई। I'm sorry, I don't want to offend anyone, but my mind keeps working like this. मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मेरा माइंड ऐसे काम करता है। But basically it was like a one-hit wonder, just she got a lucky shot and she became very famous and popular and made money. तो उसके साथ ऐसा हो गया कि उसमें टैलेंट तो नहीं था, लेकिन गलती से उसका सॉन्ग चल गया और वो फेमस हो गई और उसका सॉन्ग हिट हो गया। God does not want us to use faith like that. परमेश्वर नहीं चाहते कि हम विश्वास को वैसे इस्तेमाल करें। Like you get one shot and you're lucky and it's like, oh, God worked, faith worked, and then the next time you want to have a same result, there's no faith. You're not able to reproduce this. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने विश्वास का इस्तेमाल किया और जो चीज़ के लिए हम विश्वास का इस्तेमाल कर रहे थे वो हो गई, और दूसरी बार जब हमें
वापस विश्वास इस्तेमाल करने की समय आता है, तब हम विश्वास इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। I just realized it was Dinchak Puja. मेरी पत्नी का नाम भी पूजा है। My wife is very talented. I thank God for her. मेरी पत्नी बहुत टैलेंटेड है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। You can tell that I did not make this stuff up earlier, before I came here. Thank you, Jesus. So faith has to be grown. इसलिए विश्वास को बढ़ाना बहुत जरूरी है। It has to be used, it has to be exercised. Only then we will have an inheritance of faith that can be transferred to our children and our grandchildren. ये विश्वास को जब हम बढ़ाते हैं और इसको हम जब कार्य में लाते हैं, तभी जाके हमारे पास ऐसा उसको हम प्रकट कर पाएंगे और इतनी सारी चीज़ें हमारे पास होंगी जो हम हमारे बच्चों को और उनके बच्चों को विरासत में दे पाएंगे। We'll go to one verse. हम एक वचन में जाएंगे। In Timothy, 2 Timothy, दूसरा तिमोथियुस 2 Timothy 1:5. पहला अध्याय 5वां वचन। Paul here is writing to Timothy saying, when I call to remembrance the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, I'm persuaded it is in you also. मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि वो तुझ में भी है। Here we see it's like faith is transferred over generations. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विश्वास जो है वो विरासत में अगली पीढ़ी तक जा रहा है। We should be walking with such intimacy and such glory with the Lord that our generations, the next generation that comes after us, should start where we are ending. They should start where our ceiling is. तो हमारा विश्वास हमारे परिवार में ऐसे बढ़ना चाहिए कि हमारा विश्वास जहाँ पे खत्म हुआ है, जहाँ पे हमने बनाया है, अगली पीढ़ी आके वहाँ से बांधना चालू करे और उसकी अगली पीढ़ी उसके ऊपर बांधना चालू करे। This mighty woman of God, Heidi Baker, she has this prayer. She says, Lord, let our ceiling be their floor. Let our ceiling be their floor. हाइडी बेकर करके एक प्रभु की सेविका है, वो कहती है, वो ऐसे प्रार्थना करती है कि प्रभु जहाँ पे हमारी छत है वहाँ पे हमारी अगली पीढ़ी का फ्लोर होना चाहिए, वहाँ से उन्होंने शुरू करना चाहिए। And so if I feel really blessed in this area because I have godly parents and I've seen them serve the Lord for all of their lives, and many of the things in which I am able to function, I really attribute it that I've seen that faith and that commitment to the Lord in them, and that's what has come into me. और मैं खुद को बहुत आशीर्वादित मानता हूँ कि मैं मेरे माता पिता जो है वो प्रभु में पहले से है, तो उनको मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा है प्रभु की और प्रभु की सेवा में कैसे रहना है, उसकी तरफ मन लगा के प्रभु की सेवा कैसे करनी है, प्रभु में कैसे बढ़ना है, तो वो उनके द्वारा मेरे अंदर बहुत सारी बातें वैसे ही आई है। Amen. Amen. And similarly, when we build our lives on the faith of God, and we have examples and we have monuments of faith in our life that these things were accomplished and won and conquered through faith, it becomes a legacy for our next generation so that they walk in the ways of God. जब हम हमारे विश्वास का इस्तेमाल करके उसे कार्य में लाते हैं, ऐसी वस्तुओं को पाते हैं, ऐसे युद्ध लड़ते हैं और विजय पाते हैं, तो हमारे विजय की जो ट्रॉफीज होती है, जो बहुत सारे निशानियां होती हैं हमारे विजय की, उन निशानियों को देख के अगली पीढ़ी भी प्रेरणा पाती है और वो भी उसी विश्वास में आगे चलते हैं। And so faith can be transferred as well. This is something we've seen here, that it can be transferred over generations. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विश्वास जो है वो दूसरी पीढ़ी में दिया भी जा सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ये यहाँ पे हुआ है। Now, I don't remember if this was taught, but I don't know if all these weeks we've learned how to use faith, because we've learned what it is, what it does, how good it is, how we are not having it or not using it. But I don't know if we've really seen or understood how to use it, how to release your faith. तो यहाँ पे हमने पिछले महीने से हमने पढ़ते हुए देखा है कि विश्वास क्या है,
उसके बारे में हमने देखा है कि कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे पास वो है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता क्या हमने ऐसे सीखा है कि उस विश्वास को हमारे जीवन में कैसे रिलीज करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। Let's go to Mark 11, हम जाएंगे मरकुस 11वां अध्याय verse 22. 22 वचन। So Jesus answered and said to them, "Have faith in God." तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। For assuredly I say to you, whosoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उकड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो वही होगा। yeah, and he does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। See, faith is released firstly by speaking. इसलिए विश्वास तब रिलीज किया जाता है, तब कार्य में आता है जब हम बोलते हैं। Amen. आमीन। But the speaking has to be with faith. लेकिन ये जो बोलना होता है ना, ये भी विश्वास से ही होना चाहिए। It can't be like a farmer who's not planted any crops and right on the day when the harvest starts, he's saying, I believe I have harvest. I believe I have a harvest. तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि कोई किसान है जो उसने कुछ बोया ही नहीं, और जब कटने का समय आया उस दिन वो खेत में जाके बोल रहा है कि मेरा विश्वास है, फसल आ रही है, फसल आ रही है, जबकि उसने बोया ही नहीं है। Or it may be like this woman who has no belly, but she's going and saying, this is my 9th month, and you know, any day now the baby is going to come. और ऐसा भी नहीं हो सकता वो स्त्री के समान जो उसका गर्भ धारणा हुई नहीं है, उसका पेट बड़ा नहीं है, और जाके वो कह रही है कि अब मेरा डिलीवरी का महीना आ गया है, अभी बच्चा होने वाला है। Do you understand? There has to be faith. There has to be this substance of things hoped for. And after that, when we speak, that's when faith is released and that's when things change. इसका मतलब ये जो विश्वास है उसका एक सब्सटेंस होना, उसका आकार पहले होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोना, शब्दों को बोना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बाद में चल के प्रकट हो। It's not just by saying and confessing and declaring without believing. ये सिर्फ घोषणा करना, विश्वास बोलना, ये बिना विश्वास के करने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। But when you believe and with faith, when you speak, there will be manifestation. जब आप विश्वास करके जब बोलते रहोगे तब जाके वो प्रकट होगा। But confession is a very good way to bring faith in your heart. इसलिए अंगीकार करना एक बहुत काम का मतलब एक इट्स वेरी यूजफुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और काम करता है। When you keep confessing, you keep confessing, you keep confessing, at one point of time, faith comes by hearing, and you've heard it so many times that it induces faith in your heart. और जब आप अंगीकार करते हैं, बोलते रहते हैं कुछ बातों को, तो कुछ समय बाद जब आप बार बार वो बोल रहे हो, तो आप जब खुद जो बोल रहे हो वही सुनते हो, तो विश्वास उस सुनने के द्वारा भी आता है। See, some of you know the testimony of this phone. कुछ लोगों को इस फोन की गवाही के बारे में पता है। That before this I had a very advanced phone. इसके पहले मेरे पास बहुत भारी वाला फोन था। There used to be an antenna hanging from the case of the phone. उस फोन को एक एंटीना था, वायर था एक। It was basically a headphone jack that I cut out because the screen would not come up until I plugged in the headphone. और वो फोन ऐसे खराब हो गया था कि उसका स्क्रीन चालू ही नहीं होता था जब तक मैं उसमें वो हेडफोन का जैक नहीं डालूं। And my mom was provoking me for good works by giving me ताने. और मेरी माँ मुझे बहुत उकसाती थी जाके कि इसको ठीक करा के ला। She's like, you're earning, you should go and do it. And then just to counter her, I just started saying, yeah, God is going to give me an iPhone. और मेरी मम्मी जब मुझे कहती थी कि जाके अभी तो पैसा कमा रहा है, जाके उसको ठीक करा के ला, तो मेरी मम्मी को जवाब देने के लिए मैं कहता था कि नहीं, प्रभु मुझे आईफोन दे रहे हैं। I didn't want an iPhone. मुझे आईफोन नहीं चाहिए था।
until I got it, I didn't know that I needed an iPhone. जब तक मुझे मिला नहीं तब तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे आईफोन की ज़रूरत है. So I didn't need it. It just started as a counter to her. Like, I'll just crack jokes at home. So it's like, hey, God is going to give me an iPhone. तो ये तब शुरू हुआ जब मैंने सिर्फ जवाब देने के लिए ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे प्रभु आईफोन दे रहा है. And everywhere, because it was like a unique looking phone. You can imagine, I am good into security. So I had a very thick cover. तो ये बहुत अलग दिखता था वो फ़ोन, क्योंकि मैं फ़ोन को बहुत अच्छे से रखता था, तो मैं बहुत मोटा सा कवर लगा के घूमता था. And there was a wire hanging, like, it was this long. And everyone was able to see it. और एक लंबा वायर था लाल कलर का, तो सबको दिखता था वो. But I didn't care what people thought about it. So I was okay carrying it around. तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं था कि अरे लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, तो मैं लेके घूमता था. But because everyone was able to see it, they kept asking me, what is this? What is this? What is तो this? क्योंकि ये सबको दिखता था कि अलग फ़ोन है ये, तो लोग पूछते थे कि ये क्या है. So as an answer to them also, I began to say, yeah, this is like a new technology, something advanced. And then I would say, yeah, God is going to give me an iPhone. तो मैं मजाक में उनसे कहता था कि ये ना नया टेक्नोलॉजी वाला है, ऐसा है, लेकिन प्रभु मुझे आईफोन दे रहे. And over 2 years, almost for 2 years this happened. And because I did not care for an iPhone, I was not desperate, Lord, iPhone kidhar hai. It was just like a casual thing. I just kept saying and kept saying. तो ये 2 साल तक चला और मैं आईफोन मेरे लिए मुझे नहीं चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं थी, तो मैं प्रभु को नहीं पूछ रहा था प्रभु आईफोन किधर है, क्यों नहीं आ रहा है. At some point of time, this confession turned into faith because I was saying, God is giving me an iPhone. And I, even in communication with strangers, any phone topic would come up, I would just say, oh yeah, my next phone is going to be an iPhone. तो ऐसे होता था कि ये पहले तो सिर्फ बोलने के लिए बात शुरू हुई थी, लेकिन जब कुछ समय बाद ये मेरा विश्वास बन गया कि प्रभु मुझे आईफोन दे रहा है, तो अगर मैं ऑफिस में भी बात कर रहा हूँ किसी से, स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको भी बताता था कि अरे अगला फ़ोन ना आईफोन लेने वाला हूँ मैं, आईफोन मिलने वाला है. I still did not want an iPhone. I did not have like a strong desire for iPhone, nothing like that. मेरे अंदर आईफोन के लिए बहुत बड़ी इच्छा अभी भी नहीं थी, फिर भी मैं बोल रहा था मुझे आईफोन चाहिए. But at some point, speaking it, saying it, faith came into my heart by hearing and hearing it again. लेकिन बोलते बोलते जब मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूँ कि मुझे प्रभु आईफोन दे रहा है, तो उस बोलने के द्वारा मेरे अंदर विश्वास आया. And so finally, when we had gone to Sister Meadows' wedding few years back, that's where this brother got inspired by my phone that I was having. तो कुछ साल पहले जब हम सिस्टर मेडोना की शादी में गए थे, तो वहाँ पे एक ब्रदर ने मेरा फ़ोन देखा और उसको देख के उनको बहुत एक प्रेरणा मिली. And 6 months prior to this, I had met that brother in Bangalore. और इन्हीं ब्रदर को मैं 6 महीना पहले बैंगलोर में मिला था. And even there, he was inspired by my phone. वहाँ पे भी वो मेरा फ़ोन देख के बहुत इम्प्रेस हो गए थे. So at Meadow Sister's wedding, when we were coming back the next day, he just like hounded me saying, God has told me to give you an iPhone. God in fact had told me 6 months back when we met in Bangalore, that's when God told me to give you, but I disobeyed, and now please let me obey. And it literally fought to give me this phone. और वही ब्रदर जो 6 महीने बाद मेडो सिस्टर की शादी में मिले थे हमें, तो उन्होंने मेरे पीछे लग गए और मुझे कह रहे थे कि मुझे प्रभु ने कहा था कि तुझे आईफोन देना है. 6 महीने पहले ही बताया था, लेकिन मैंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी. अब मुझे मौका मिला है, मुझे प्रभु की आज्ञा मानने दे, मुझे बता हाँ. कौन सा चाहिए. Sorry, nah, he did not say iPhone. He said, God has told me to give you a new phone. So tell me which phone you want. तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे कहा है कि तुझे फ़ोन देना है, तो तू बता तुझे कौन सा फ़ोन चाहिए. So first I said, अरे नहीं ऐसा मत बोल करके. I sent him off. He had to go back to Bangalore from Chennai. So he went in his bus. Even in his bus he was messaging and troubling me. तो मैंने फिर भी उनको टलका दिया. मैंने कहा जाओ, अरे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, जाओ जाओ करके उनको भेज दिया. लेकिन वो बस में बैठ के भी वो मुझे मैसेज कर रहे. He's like, tell me. God has told me. Don't make me disobey God. Tell me. और वो मुझे कह रहे थे कि अरे नहीं, बता मुझे कौन सा फ़ोन चाहिए, मैं प्रभु की आज्ञा मानना चाहता हूँ. And so this is a few years back. This is how much I did not know about iPhone. I thought iPhone 6s or something. हाँ, 6s. I had seen one with Amish. So I thought, I don't know about iPhone. That's what I'm telling him. I don't know about iPhone, but I saw my brother using 6s, which was the oldest model, I think. हाँ, हाँ. So that's what I told him. I don't know anything about iPhone. So he's like, okay, I'll take care of it. तो उन्होंने जब पूछा था कि यार कौन सा फ़ोन चाहिए, तो इन्होंने एक टाइम पे बताया. मेरे पास उन्होंने आईफोन 6s देखा था, तो उन्होंने बताया कि ये 6s है मेरे एक भाई के पास. तो मैंने वो देखा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देख लूँगा करके. And then he straight away sent this link and basically ordered it, and it came to my house.
तो उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया, अमेज़ॉन से लिंक भेजा और ये फ़ोन मेरे घर पे आ गया। And then I showed it to my mom, and we have a video of that. और तब मैंने ये फ़ोन मेरी मम्मी को दिखाया और एक वीडियो लिया हमने। Amen. So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. And so when you confess the promises of God over and over your life, even if you're not believing it, keep declaring it so that faith enters into your heart. तो अगर आप घोषणा कर रहे हो किसी बात के लिए, तो आपके पास उसके लिए विश्वास भी नहीं है, तो भी घोषणा करते रहिए, क्योंकि जैसे आप लगातार वो करते जाओगे, उसके सुनने से आपके अंदर विश्वास आएगा और वो चीज़ हो जाएगी। And as you keep doing this, at one point you will not even realize it, but faith would have entered into your heart, and that day when you confess, it's going to make a disruption in the spiritual realm. और जब आप ये घोषणा करते जा रहे हो, जब आपके दिल के अंदर विश्वास आता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आत्मिक जगत में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। And so when you confess, you have to confess like you've already received it. और जब आप घोषणा करते हो, अंगीकार करते हो, तो ऐसे तौर से करना है कि आपको वो मिल चुका है। This verse here says, Mark 11:23, it says, "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things which he has said will be done, he shall have whatever he says." ये वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अब इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। First comes the speaking, and then comes the manifestation of it. पहले आता है बोलना, उसके बाद वो प्रकट होता है। And the next verse says, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them." अगला वचन कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, And then you will have them. और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। So you have to believe that it is done. When you've asked, when you've declared, you have to believe that it is done. And there onwards, you just have to say, "Father, I thank you that it is done. Father, I thank you that this is done." And in that process, you've believed, and now you're not moving, you're not doubting whether God is going to give me this phone or not. इसका मतलब जब हम घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हम जब अपने मुंह से बोलते हैं, तो हम बोलने के बाद हमें विश्वास करना है कि ये हमें मिल चुका है, और उसके लिए हमें धन्यवाद करना है कि प्रभु धन्यवाद, मुझे मिल चुका है, ताकि हम उस बोले हुए वचन से, उस वाक्य से हम पलट नहीं जाए, हम मुंह नहीं मोड़ेंगे कभी। You know, one good thing about this phone coming was, I was not desperate for this phone. और इस फ़ोन की एक अच्छी बात ये हुई कि इस फ़ोन को पाने के लिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी, And so there was no reason to doubt whether God is going to give me or not. इसलिए कुछ डाउट करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं था। You know, if I was desperate for it, I'm sure I would have created an Ishmael phone. अगर मैं इसके लिए बहुत जल्दी में होता, तो मैं जाके, जैसे अब्राहम ने इश्माइल को जन्म दिया, मैं भी कोई दूसरा फ़ोन ले आता था। You know, I would have tried to bring about the promise of God in my ability, just because of my desperation to see it come through. तो मुझे पता चलता था कि अगर ऐसे नहीं, अगर मैं जल्दबाजी में होता, तो मैं जाके बहुत ज़्यादा कोशिश करके कुछ ना कुछ कर लेता था, कुछ दूसरा फ़ोन ले आता था। Right? Similarly, what we have to do is, when we're believing God for something, we have to set it as done, and then these thoughts of desperation, don't entertain it. इसका मतलब जब हम घोषणा करते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें विश्वास करने कि हमें ये मिल चुका है, और उसके बाद जो डाउट करने वाला जो विचार आता है, जो संदेह के विचार आते हैं, उन विचारों को हमें नहीं लेना है। And don't start with 10 kalol. You know, don't start with a big amount. Start with something that you can believe for, and something, and grow in your faith step by step. शुरुआत में ही बहुत बड़ी चीज़ मत मांगो, पहले छोटे से शुरुआत करो, उसमें विश्वास योग्य रहो और बढ़ते रहो। Yeah, because we don't want to be like the one hit wonder. You know, we want to consistently grow and progress, and be able to believe for greater things, so that the kingdom of God can be advanced. क्योंकि हमें एक ही बार विश्वास नहीं लगाना है, हमें उसमें बढ़ते रहना है, कि हर बार जब हम विश्वास में चलेंगे, उसका वो प्रकट होगा। Amen. आमीन। Let's all stand up. हम सब खड़े होंगे। Father, we thank you for this day, Lord. पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, We thank you for your faithfulness. हम on us. आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। Father, we thank you that you are faithful to do that you've promised.
हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने जो वादा किया है आप उसको पूरा करते हो। Holy Spirit, teach us to believe. Give all of us a believing heart that we all will be living by our name called a believer. प्रभु आप हमें कृपा दीजिए ताकि हम हमारे दिलों में विश्वास कर पाए और हम विश्वासी जो हमारा नाम है उस नाम के अनुसार हम चल पाए। That we are believers of a faithful God. We are children who believe wholeheartedly in their Father's goodness. हम वो विश्वासी बने प्रभु जो हमारे जीवित परमेश्वर पे विश्वास करे और ऐसे परमेश्वर के बच्चे बने जो एक विश्वास योग्य पिता है। Father, we thank you that you have answers to all the questions in this world. प्रभु हमें विश्वास है कि आपके पास इस जगत के सारे सवालों के जवाब है। Teach us that we live by faith and download these answers so that we can share it with the world. हमें सिखाइए प्रभु कि हम आपके साथ विश्वास में कैसे जिए और इन उत्तरों को हम कैसे डाउनलोड करें हमारे अंदर इस दुनिया में दे। Father, we pray that when we look at our lives 1 year from now, let there be monuments of faith, of things that were achieved and accomplished and brought to fruition by faith. हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले एक साल में ऐसा हो कि हमारे पास विश्वास से जीती हुई लड़ाइयों के बहुत सारे चीज़ें हो प्रभु, जिनको देख के हम बोल पाए कि हमने विश्वास की लड़ाई जीती है। Teach us to live and draw out of the kingdom of God. हमें सिखाइए प्रभु कि हम विश्वास से कैसे जिए और आपके राज्य से चीज़ों को कैसे लें। Father, we thank you that you are always faithful, and Holy Spirit, we thank you that you're always teaching us. पवित्र आत्मा में धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा विश्वास योग्य और हमेशा हमें सिखाते हो। Thank you that you never leave us. धन्यवाद कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। And right now, Father, we thank you. We take authority over all the sicknesses that people are dealing with in this place. हम विश्वास करते प्रभु, हम इस समय पे जितने भी लोगों के शरीर में बीमारियां है हम उसके ऊपर अधिकार लेते हैं। In the name of Jesus, I curse every pain, every root cause of pain in your bodies. यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को, हम बीमारी के जड़ को हम श्रापित करते हैं। Every joints that are not able to freely move, in Jesus' name we declare freedom to you right now. जो भी जोड़े हैं अकड़े हुए हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, हम उन जोड़ों पे प्रभु के यीशु मसीह के नाम से आज़ादी घोषित करते हैं। Every deficiencies in the body, in the name of Jesus, we cancel you. Your body levels will be normal in Jesus' name. हर एक हमारे शरीरों में जो भी डेफिशिएंसीज है, जो भी कमियां हैं, हम सब कमियों को यीशु के नाम से पूरा करते हैं। Father, we thank you for your faithfulness. We thank you that each one present here carries your peace, that there will be no tormenting in their hearts, Lord. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं प्रभु, वो सारे लोग आपकी शांति को पाए हुए हैं और उनके दिलों में कोई भी persecution नहीं, कोई भी अशांति नहीं है प्रभु। We thank you, Lord, that there will be no torment, that there will be supernatural peace, and it will be a merry heart that works good like a medicine. हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इन लोगों के दिलों में कोई भी पीड़ा नहीं है और उनके जो आनंद से भरे हुए हृदय है वो उनके शरीर के लिए एक अच्छी औषधि का काम करेंगे। Right now, Lord, for any disturbing thoughts, any depression, we curse them, we break your power off of you in Jesus' name. हर एक डिस्टर्ब करने वाले विचार को, अशांति के विचार को हम श्रापित करते हैं, तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। Any thoughts of rejection, I curse you in Jesus' name. Father, I thank you that your love is being manifested and is being shed abroad and abounding in their hearts right now. हर एक विचार को जो शैतान से आता है, जो अलगाव का विचार है, जो नकार का विचार है प्रभु, उसको हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Jesus, you are the Prince of Peace. प्रभु आप शांति के राजकुमार हो And we thank you that you live inside of us. और हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे अंदर रहते हो। We thank you for your faithfulness that it never ends. हम आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं जो कभी खत्म नहीं We होती। thank you that you surround us with favor as if with a shield, Lord. हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें अपने अनुग्रह से घिरे हुए हो एक ढाल की तरह। Your blessing is upon the righteous and upon the 1,000 generations of them. आपका जो आशीष है वो धर्मी के ऊपर होता है और उसके हजारों पीढ़ियों तक होता है। Father, we ask that we not live like mere men, like common men in this world, Lord. हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हम सामान्य लोगों की तरह नहीं जिएंगे प्रभु।
We ask a hunger to see your kingdom manifested and become real in our lives, Lord. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें भी आप वो भूख दीजिए ताकि हम आपके राज्य को प्रकट होते हुए देखें प्रभु, That we will be known for the legacy of the faith that we live out, Lord. ताकि हम इस बात से जाने जाए कि हम विश्वास की विरासत को लेके जीने वाले लोग हैं And our generations will start at the peak of our lives, Lord. और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो हमारे विश्वास के ऊपर से शुरू करेगी। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। I would call the pastor. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए है ना। विश्वास, प्रभु विश्वास में हम सबको दृढ़ कर रहा है और हम विश्वास से जीने वाले लोग हैं, आमीन। तो ये महीने में किसी का बर्थडे है अगस्त में, जिस किसी का भी बर्थडे है, शादी का सालगिरह है, आप लोग आइए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और किसी का गवाही है तो वो भी इसके बाद दे सकते हैं, आमीन। या मैरिज एनिवर्सरी both, okay, your birthday, praise God, happy many happy returns of the day brother, many happy returns of the day, praise God। हम सब पूरा कलश इनके ऊपर हाथ रखेंगे, हाथ हम ब्लेस करेंगे इनको। स्वर्गीय पिता, आपके महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आप यहाँ पर मौजूद है पिता, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु जी आपने हम सब से बात किया है प्रभु, और आपका वचन हम सब के अंदर जीवित हुआ है। विश्वास से हम सब जीने वाले लोग हैं प्रभु। विश्वास एक ढाल है प्रभु जो शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझाने वाला है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आज हम सबको अपने रिवाइव किया प्रभु आत्मा में, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी पहचान में और उन्नति हम कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। इस समय प्रभु जी यहाँ पर जो प्रभु आपके बच्चे हैं प्रभु, आप में जो नया जन्म पाए हैं प्रभु, और आपने इनको आशीर्वादित किया पिता, इनका जन्मदिन है पिता। हम पूरी कलीसिया मिलकर प्रभु इनको यीशु के नाम से आशीर्वादित करते पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, इनको आपने चुना है प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा होने वाली है पिता। आपके ज्ञान पहचान में आपने इनको लाया है प्रभु, और इनको प्रभु आपका महिमा के लिए आपने इनको चुना है पिता। हम पूरी कलीसिया मिलकर यीशु के नाम से इनके जीवन में आशीषों को आजाद करते प्रभु। हर एक बात जो आपने इनके लिए रखा है पिता, इनके जीवन में वो पूरी होने पाए पिता। आपका उद्देश्य इनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। हालेलुया। ऐसा हम घोषणा करते प्रभु इनके जीवन में प्रभु, और इनके जीवन से प्रभु अनेक लोग प्रभु जाने की यीशु मसीह प्रभु है पिता। धन्यवाद करते प्रभु। हम पूरी कलीसिया मिलकर यीशु के नाम से इनको आशीर्वादित करते प्रभु। ये जहां कहीं भी जाए प्रभु, आपके नाम प्रभु इनके द्वारा रोशन होने पाए प्रभु। एक गवाह बनकर प्रभु ये जिए पिता। धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हैप्पी बर्थडे टू यू। God has blessed you, God has blessed you. Happy birthday dear brothers sisters, happy birthday to you. Woo! Happy birthday bachcha. Yours also. गवाही किसी को देना है? Yeah. You want to? प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह जब मैं तैयार हो रहा था चर्च आने के लिए, तो मैं जब नहाने गया था तो एक बूंद पानी मेरे आँख में घुस गया था। अचानक से मुझे जलने का ये सेंसेशन हुआ। मैंने साबुन कुछ नहीं डाला था, जस्ट प्लेन सादा पानी आँख में गया और मेरा आँख जलने लग गया। और इमीडिएटली नहाने के बाद मैं जब आईने में देखा तो पूरा लाल हो गया था, फुल रेड। ओके, बट उसी वक्त मुझे मेरा अथॉरिटी लेना था, तो मैंने कमांड किया कि जो भी जो कुछ हो रहा था उसको मैंने कर्स किया, और उसको मैंने बोला कि तुम बाहर निकलोगे मेरे आँख में से। ओके, और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो कुछ लोगों ने देखा भी थोड़ा सा मेरा आँख लाल था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल ठीक हो गया है कंप्लीटली। जो भी रेडनेस था और मुझे कुछ सेंसेशन भी हो रहा था बर्निंग का, वो भी चला गया। सो ऑल ग्लोरी टू गॉड, बिकॉज
this is where faith is being used, and we have to use our faith daily. तो बस इतना बोलना था मुझे. हालेलुया. मेरा भी एक गवाही है. कुछ हफ्तों से क्या हो रहा था, मेरे कान से पानी गिर रहा था, दोनों कान से, और कुछ ऐसा मतलब इन्फेक्शन टाइप हुआ था. तो शायद मैं वो ईयरफोन लगा था ना, ईयरबड्स लगा के गाने सुनता हूँ, प्रीचिंग सुनता हूँ, तो कंटिन्यू लगाने से शायद वो हो रहा था ऐसा. तो फिर मैंने कमांड किया कि भाई ये जो भी है निकल जाए, ये सूख जाए. लेकिन फिर थॉट आ रहा था कि नहीं, तुम ईयरबड लगाते हो, उससे एलर्जी हो रहा है, ऐसा थॉट आ रहा है. फिर मैं बोला नहीं, मैं नहीं लेता ये थॉट. मैं बोला मैं ईयरबड लगाऊंगा और ये सूखेगा भी. और आज पूरी तरह से सूख गया है, पूरा उसका पपड़ी निकल रहा है अभी. तो जो भी थॉट हमारे पास आता है वो दुनिया से आ रहा है, डॉक्टरों से आ रहा है, एलर्जी है, फलर्जी आ रहे है, कुछ नहीं है. मसीह का वचन है, वही सच्चा है. हालेलुया. बाकी सब झूठ है. तो मैंने झूठ को रिजेक्ट किया और मैंने बोला मैं कान में लगा के और सुनूंगा, ज्यादा सुनूंगा. और वैसा ही हुआ कि ये पूरा सूख गया है और पूरी तरह से अच्छा हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है. वो काम 100% करता है. अगर हम विश्वास करें तो पूरा वचन हमेशा काम करेगा. आमीन. तो कभी भी जो विचार है उसके साथ सहमत मत हो जाओ, वचन के साथ सहमत हो जाओ. वचन जो बोलता है, प्रभु कहता है कि तुम पॉइजन भी पियोगे तो तुमको कुछ हानि नहीं होगी. तो ये विश्वास हमारा होना चाहिए. ये नहीं कि जाके पॉइजन पियो, लेकिन ऐसा विश्वास ये होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ हानि नहीं होगा. अब ये जो बर्ड में डाल रहा हूँ, ये दुनिया से बाहर से किधर एलियन से नहीं आया, ये भी धरती का ही है. तो धरती का कोई चीज मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है. आमीन. आमीन. आइए. प्रेज द लॉर्ड सभी को. हम सब जानते हैं ये आज जी विश्रांतवाड़ी से आती है और हमारे कलीसिया की एक डेडिकेटेड मेंबर है. तो अजी की एक गवाही है. वो कहती है कि पिछले बार जब हमारी उपवास प्रार्थना हुई तो दिन भर उपवास प्रार्थना में ये थी, और शाम को टाइम पे जब खाना हुआ तो उन्होंने खाना खा के मतलब ना घर पे खाना वगैरह सब लेके, शी वॉज सो ब्लेस्ड, इतना वो खुश थी कि घर जाने के बाद वो प्रभु को धन्यवाद करते हुए वो प्रार्थना कर रही थी. तब उनको तब वो प्रभु के पास हमारे जो पास्टर जी है गणेश अंकल और बबीता आंटी, इनके लिए प्रेयर कर रही थी, दिल से धन्यवाद दे रही थी उनको, क्योंकि इतना सारा दिन, इतना सुंदर दिन गवाया प्रभु के सानिध्य में. थ्रू आउट द डे उन्होंने परमेश्वर के साथ बिताया. इसके लिए वो तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी परमेश्वर का. तब क्या हुआ, उसी शाम उनको एक प्रभु ने सपने में एक चीज़ दर्शाई कि प्रभु ने उनको हमारी कलीसिया की कोई एक रिट्रीट की तरह एक मीटिंग है, कई पिकनिक के लिए हम जा रहे हैं, और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई वो कह रही है कि इतनी सुंदर जगह थी, इतनी हरी भरी चीज़ें, मतलब हरी भरी जगह थी, कोई खड्डे खुड्डे नहीं, कुछ नहीं. और वहाँ एक ही पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, और हम लोग सब उसी पेड़ के नीचे बैठ के हम प्रार्थना कर रहे थे. तो ऐसा हुआ, वो सपने में देख रही है कि ऐसा हुआ कि आंटी और ये अजी ये ना कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाने का ट्राई कर रहे थे. तो बबीता आंटी कह रहे कि वो मतलब उन्होंने देखा कि बबीता आंटी एक लकड़ी लेके सारे, ये दोनों मिलके सारे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे, और ये एक पत्थर पे बैठी हुई थी. और ऐसा हुआ कि जिस तरह से बबीता आंटी वो सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही है, सारे वो नीचे से है ना जमीन कुरेद के सब जितना भी ड्राई चीज़ है वो निकाल रही है. तब उन्होंने देखा कि बबीता आंटी को कुरेदते एक बड़ी सी चेन, बहुत बड़ी सी सोने की चेन उनको मिली. अलॉन्ग विद दैट एक ब्रेसलेट भी मिला, एक सोने का ब्रेसलेट भी मिला. और ये इतनी खुश हो गई कि ये अचानक कहाँ से दिया. तो वो एक कहती है कि वो एक परमेश्वर की ओर से प्रतिफल था. तो बबीता आंटी ने वो मतलब शी वॉज सो हैप्पी, बबीता आंटी और ये अजी भी इतनी खुश थी कि उन्होंने वो लिया और वो अंकल के पास गए, और वो कहते हैं ये मैंने आपके चर्च के लिए मैं ये बोती हूँ. तो ये उन्हें परमेश्वर ने ये चीज़ें उनको सपनों के द्वारा दर्शाई है. सो प्रभु का धन्यवाद हो कि जो भी हमारी
फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग हो रही है। इसमें प्रभु हर एक से व्यक्तिगत बातें कर रहा है। उनके पूरे थ्रू आउट द डे जो भी हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं वो व्यर्थ नहीं है, उसका आने वाले दिनों में हम हर एक के जीवन में फल दिखेंगे। आमेन। सो सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु मसीह को। ठीक है, हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे। कितने लोगों को गाना पता है? परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीना अधूरा है। ठीक है, हम लोग वो गीत गाएंगे। ठीक है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीऊंगा मारूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मारूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। उसने है सिखाया जीना मुझे, पापों की डगर पे कभी ना चलना। उसने है सिखाया जीना मुझे, पापों की डगर पे कभी ना चलना। जीऊंगा मारूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मारूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। राहों में जब आएगी कठिनाइयाँ, चलता जाऊंगा मैं, पीछे ना हटूंगा। जीऊंगा मारूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। जीऊंगा मारूंगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। जीवन का वही है उद्देश्य बना,
जीवन अधूरा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।